Hello, everyone, and welcome to Maybe Muslim. I'm Mariam Haider, producer and host of the podcast. And in this conversation, I am joined by two of Parcham's footballers and licensed coaches, 21-year-old Madina B and 19-year-old Fatima. Parcham is a Mumbai based feminist organization that runs a football program to help young girls from marginalized groups become active players and community builders. Mumbai based Madina and Fatima share their journeys with football and negotiating with family members to make it a part of their lives. While Madina's parents are understanding and supportive, Fatima had and continues to have a difficult relationship with her family when it comes to her aspirations. Listener discretion is advised as this episode mentions instances of physical violence, and the notes of this interview have time codes in case listeners want to be aware of them before listening. We discussed the challenges that these girls and other female footballers face in Mumbai to practice football, the need for more administrative and corporate support in maintaining the Fatima B. Savitri Bai ground for girls, and what more can be done for Mumbai's aspiring sportswomen. Madina and Fatima both offer a breadth of understanding around Muslim women's dreams, their stand against sometimes violent patriarchal systems within and outside their domestic spaces, and the tireless negotiation for spaces they occupy as young women. Madina dreams and aspires to join the Gokulam Kerala Football Club, and Fatima wants to keep learning and playing as she continues to also support her family financially. This Independence Day, give this episode a listen. Hear the voices of two inspiring and talented Indian Muslim women who are fighting the fight against all odds to fully live their football dreams. Hey Madina, hi Fatima, welcome to Maybe Muslim. Hello. Hi. Hello. How are you both doing? We are good. How are Good, you? good. I am doing well. I'm very excited कि तुम दोनों आज podcast पर आए हो, and I have been meaning to speak to you for such a long time. So I'm really, really excited to start this conversation. Madina, maybe let's start with you. Can you talk about your journey with football and what does it mean to you? So, तो मैं 10th में थी, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तो परचम हमारे स्कूल में आया था और दे वर मोबिलाइजिंग फॉर गर्ल्स Hmm. टू प्ले। तो मुझे उन्होंने फॉर्म दिया, कंसेंट लेटर फॉर्म दिया और उन्होंने बोला कि डू यू वांट टू जॉइन। तो द फर्स्ट थॉट आई केम टू माय माइंड वाज कि क्या मेरे अब्बा अलाउ करेंगे, क्या मेरे अम्मी अलाउ करेंगे और क्या मैं खेल पाऊंगी। सो दीज थ्री वर क्वेश्चंस। उसके बाद मैंने बोली फिर भी आई शुड गो एंड ट्राई। तो मैं अपना कंसल्ट लेटर लेके गई और अब्बा के पास, और मेरे अब्बा को बस पूछा। और मेरी छोटी बहन भी जब स्कूल में थी, तो मैं और मेरी छोटी बहन दोनों हम साथ में जुड़े। तो मैंने अपने अब्बा के पास वो लेटर लेके गई और मैंने अपने अब्बा को बोली कि अब्बा ऐसा ऐसा है, फुटबॉल खेलने का अपॉर्चुनिटी है, मैं वीकेंड्स पे होगा। एकदम क्लियर क्लियर कि मैं अब्बा को फट से बोल दूँ और अब्बा मेरे मान जाए। अब्बा मुझे वीकेंड्स पे होगा, इतना है उतना है, कुछ फीस नहीं लेंगे वो लोग, खिलाएंगे लड़कियों को, सिर्फ लड़कियाँ रहेगी। तो मेरे अब्बा ने बोला हाँ पेन लेके आ, मैं साइन कर देता हूँ। सो वो मोमेंट मुझे अभी तक याद है कि मैं अपने अब्बा को इतना ग्रेटफुल मानती हूँ कि उन्होंने मुझे अलाउ किया पहली बार। कि उन्होंने मैं सोच रही थी कि मेरा अब्बा शायद से नहीं बोलते, क्योंकि मेरा 10वीं का साल था। और ऐसा होता है ना, यूजुअली के पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि तुम 10वीं में हो, देन तुम मत ज़्यादा फोकस करो पढ़ाई पे और ये सब खेल कूद बाद में करो ऐसा। बट मेरे अब्बा ने बोला कि नहीं, तुझे फिजिकल एक्टिविटीज़ में जाना है तो तू जा सकती है और तू कर। बस मेरे अब्बा हमेशा एक बात बोलते थे कि मदीना तू कुछ भी कर सकती है, बस अपना सेफ्टी का ख्याल रखना। तो मैं बोली हाँ अब्बा, मैं करूँगी। तो फिर उस वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद मैं परचम आने लगी, मुझे हमें ट्रेनिंग्स मिलने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब परचम आई थी, क्योंकि मुझे अलग एनवायरनमेंट मिलता था। क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं आती थी तो अलग दोस्त, अलग चीज़ें, और हम लोग एक दूसरे से इतना सीखते थे कि मेरा पहले कोई भी एक हिंदू फ्रेंड नहीं हुआ करता था जब मैं स्कूल में थी। पर जब मैं परचम में आई तो मेरे हिंदू दोस्त बने, हमने उनके त्यौहार मनाए, हम डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किए कि हम कितने अलग है, पर हम लोग ने वो सब चीज़ें देखी और साथ में हम लोग खाना पीना, उठना, कैंप्स में जाते थे हम लोग। तो वो चीज़ें मुझे इतनी पसंद आने लगी कि मैं यहाँ पे घुल मिल गई। और फिर उसके बाद
बट हमारा ये स्ट्रगल रहा है हमेशा से कि हम जब भी हम जाते थे ग्राउंड पे, तो वो ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता था, कि ग्राउंड ही नहीं है, हम कहाँ खेलेंगे, और अगर ग्राउंड है भी तो वो इतना खराब कंडीशन में है कि हमें लगती थी। और कुछ बार ऐसे भी हुआ है कि हम लोग जब जाते हैं खेलने, तो लड़के लोग ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्होंने हम उनकी क्रिकेट बॉल से हम लोगों को मारा है कि हम लोग चले जाए वहाँ से। तो वो सब चीज़ हमारे एक्सपीरियंस रहे। उसके बाद फिर मैंने अपना, जब मैं कॉलेज जुड़ी, तो कॉलेज में मेरा जो कॉलेज टीम है, अब मैं कॉलेज टीम से खेल रही हूँ अपने, और जो भी लीग्स होते हैं या टूर्नामेंट्स होते हैं वो वहाँ से उनको रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। तो ये है। और मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मेरे अब्बा जो थे वो अपनी जवानी में क्रिकेट खेला करते थे, तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ है कि उनको पसंद है खेलना और कूदना, तो मुझे लगता है वो आया है मुझ में, और मुझे इसलिए मुझे मतलब लगता है कि स्पोर्ट्स से मुझे प्यार है। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि मुझे कोई कोई भी गेम दे दो, मैं हमेशा हर स्कूल के कोई भी स्पोर्ट्स का वो होता था कंपटीशन, तो मैं हमेशा पहले होती थी कि हाँ ठीक है, मैं इसमें भी आऊँगी, उसमें भी आऊँगी। तो मैं हर टीम गेम्स में होती हूँ, हर इंडिविजुअल गेम्स में होती थी। और मुझे लगा कि इसको भी एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए कि ये कैसे जाता है। तो पहले मैं खेलती थी, देन फिर उसके बाद मैं अब लड़कियों को ट्रेन भी करती हूँ, तो या सो दैट्स ऑल ऑफ। मैं आई मीन सुन के मुझे समझ में आ रहा है कि पूरे साल में स्पोर्ट्स डे वुड हैव बीन लाइक तुम्हारा फेवरेट डे ऑफ द ईयर, यू नो हाँ, लाइक करेक्ट। कि कि कुछ स्पोर्ट्स कब कुछ आएगा? लोगों का एनुअल डे होता है, कुछ लोगों का लाइक हाँ, थिएटर होता है, कुछ लोगों का म्यूजिक होता है, बट आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट फॉर मदीना इट्स स्पोर्ट्स डे, लाइक स्पोर्ट्स। you're literally rallying for the entire year for that day, but it's so, I mean it's great, I mean it's fantastic to hear that. Fatima, for you, experience थोड़ा अलग था. Like you have a good bonding with football, लेकिन it wasn't something that was easily accepted within your family. क्या तुम कुछ उसके बारे में बताना चाहोगी या कितना रिलेशनशिप चेंज हुआ है तब से लेके अब तक? जब मैं 8th में थी तब मैंने मेरी मम्मी को बोला था कि मुझे खेलना है, हुँ, तो उन्होंने मना कर दिया था। मेरी मम्मी ना स्टार्टिंग से मेरे भाई के साथ है, लाइक अगर मैंने कुछ भी बोला मुझे बाहर जाना है, तो भाई को बोल दूँगी अगर तू बाहर गई तो। लाइक वो मुझे डराते थे, मुझे लगता कि उनको लगता था कि मैं भाई से बहुत डरती हूँ, भाई मेरा पेरेंट है। तो मैं फिर डरने लग जाती थी। मैं बोलती ओके, ओके नहीं नहीं जाऊँगी ठीक है। तो बट मुझे ना बहुत गुस्सा आता था जब वो हमेशा बोलते थे कि हर चीज़ के लिए नहीं बोलते थे। तो मुझे मतलब नहीं क्यों ये हमेशा इन सब चीज़ों के लिए नहीं क्या बोलते हैं? तो मुझे गुस्सा है कि मैं इनसे झूठ बोलूँगी अभी। तो मैं उनको बोली कि मम्मी देखो स्पोर्ट्स है स्कूल में और मम्मी तो स्पोर्ट्स के लिए मना नहीं करते थे कभी। तो एक दिन के लिए ऐसे भागना, दौड़ना है तो उसके लिए कभी मना नहीं करे। तो मैंने उनको बोला कि स्पोर्ट्स है, मैराथन है तो मुझे जाना पड़ेगा और उन्होंने बोली ओके। तो मैं शाम में घर से निकली क्लासेस का बोल के और मैं ऑफ़िस आई परचम के और उन परचम में किट्स एंड ऑल दे रहे थे फुटबॉल, जर्सीज़। तो उन्होंने मेरे को दिए, मैं बोली मैं कहाँ रखूँगी इसे? मेरे घर पे लेके जाऊँगी तो उन्होंने बोला कि लेके जाना पड़ेगा और तब तो ऐसा था कि आपको झूठ भी नहीं बोलना, आपको पेरेंट्स को बताना है कि फिर मैं परचम में भी ऐसा थी कि हाँ, मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं आ रही हूँ। तो मैं घर पे गई, मेरी फ्रेंड को दी सारी जर्सीज़, किट वगैरह सब मेरी फ्रेंड को दी, जर्सी सिर्फ़ लेकर आई थी, फुटबॉल वगैरह सब दे दी थी। तो मैं घर पर आई, मम्मी को दिखाई, मम्मी देखो, देखो, देखो मेरे को जर्सी मिली, कल मैं ये पहन के भागने वाली हूँ। तो मेरी मम्मी बोली ओके, ओके ठीक है। तो फिर मैं कल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, कल सुबह होने वाली है, हम खेलने जाने वाले हैं। और मैं फिर ना 2-3 दिन प्रैक्टिस कैंसल होते गई। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो रही हूँ कि अरे प्रैक्टिस क्यों कैंसल हो रही है? मम्मी को भी मैं झूठ बोल रही हूँ। मम्मी बोली क्या है मत जा अब तू। तो मैं बहुत टेंशन में भी होती थी। फिर एक दिन फाइनली प्रैक्टिस हुई, हमारे पास ग्राउंड नहीं था तब, हम लोग कोई एक रोड पे खेलते थे, सुबह-सुबह जाकर रोड पे खेलते थे और वहाँ के अंकल चिल्लाते थे हम लोगों को सोने दो, जाओ यहाँ से भागो, फिर हम लोग चेंज करते थे रोड ऐसा। और फिर वहाँ से मैं झूठ बोल के निकली और मैं मम्मी को तब भी नहीं पता था। मैं कंटिन्यूअसली 1 महीना ऐसे निकलते गई क्लासेस का बोल के, स्कूल का बोल के निकल जाती थी और ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं होती थी, ऐसे हफ्ते में 3 बार 2 बार होती थी, तो इट्स ओके। तो फिर मुझे बहुत मज़ा आने लगा। मैं डे 1 तो इतना गिरी, मुझे मतलब नहीं आता था टच करने, खेलने-वेलने, बट मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। मेरे को खेलने कुछ नहीं आता था बट मेरे को बहुत इंटरेस्ट था और मुझे गिरने में इतना मज़ा आता था। मुझे गिरने में इतना मज़ा आता था, फर्स्ट डे मेरा नाम मेरी कोच ने गिर पड़ा रख दिया। सो या फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, फाइनली मेरे घर में पता चल गया कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ। मेरे भाई को पता चल गया और फिर मेरे भाई ने जो मुझे मारा है ना, इतना मारा मेरे भाई ने मुझे,
फिर मेरा सब बंद कर दिया। उसने मेरे फ्राई पैन से मारा, मेरे घुटने पे मेरा फ्राई पैन टेढ़ा हो गया। कोई इतना गंदा गंदा उसने मेरे को मारा है। फिर मैंने बोली कि नहीं, मैं जाऊंगी खेलने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि देखो मम्मी, इसका ना फुटबॉल में कोई है, तभी बार बार इतना जिद कर रही है। मैं बोली फुटबॉल में लड़के नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं। तो नहीं, एग्री नहीं हुआ। फिर मेरी कोच है ना, वो एक्चुअली मेरी नेबर है। तो मेरी कोच की मम्मी को कॉल करके, मतलब हम फैमिली जैसे रहते हैं, हम लोग बहुत टाइम से, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है उनकी मम्मी। तो मेरी कोच की मम्मी को कॉल करके बोल रहा है कि अपनी बेटी को समझा दो, हाँ तुम बोलो कि फातिमा से दूर रहने, ऐसा वैसा बोल रहा था। तो फिर वो फिर है ना मम्मी को आके बोले क्या हो गया घर में, फातिमा क्या करी। मम्मी बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर उसकी नेक्स्ट डे से मैंने खुद निकलना शुरू कर दिया। मैंने मैं भाई की नहीं सुनी, मैं किसी की नहीं सुनी, मैं निकल गई। और फिर उस टाइम मैं झूठ बोल के निकलती थी एक्चुअल में कि हाँ हाँ नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ ट्यूशन। और मैं तब ट्यूशन मदीना के पास जाती थी। और मदीना के पास ट्यूशन जाती थी और मदीना को भी नहीं पता था कि मैं झूठ बोल के आ रही हूँ शायद। और मदीना से भी छुट्टी कर देती थी। और मेरी मम्मी, कोई कोई मेरी मम्मी को बोल देता था कि फातिमा है ना, फातिमा यहाँ पर है, फातिमा वहाँ पर है। फिर मम्मी ने कॉल करके मदीना को पूछते थे आज ट्यूशन आई है वो। मैं मम्मी फिर हाँ हाँ आई आ जाए। सपोर्ट कर हम लोग, हाँ हाँ सो आंटी आई है ना, पढ़ाई कर रही है। हाँ, तो फिर मेरा डी लाइसेंस हुआ। तब जाके मेरी मम्मी लोग को पता चला कि हाँ, अच्छा ये खेल रही है, कोचिंग दे रही है, ओके। बट उनको लगता था कि मैं कितना, मतलब कितनी बड़ी हो जाऊँगी, कब तक खेलूँगी। और उनको बहुत मना करते थे। बट मेरा डी लाइसेंस देख के, बट मेरा भाई तो एग्री नहीं हुआ। मेरा डी लाइसेंस का ज़ेरॉक्स फाड़ दिया उसने। मतलब मैं तो उसको दूसरा डी लाइसेंस दिखा दी थी सर्टिफिकेट कि भई मेरा रियल वाला ना फाड़ दे। तो उसने ना मेरा डी लाइसेंस की बुक फाड़ दिया, सब कुछ फाड़ दिया। मैं बोली जाने दो। मेरा भाई अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं खेलना चाहती हूँ। बट मेरी फैमिली में मम्मी डैडी की ओके इस चीज़ से। There's so much जो मेरे दिमाग में चल रहा है जब you were sharing the story. But I'm going to take it, like the first thing I want to take is the football field. फातिमा, तुमने कहा कि जब तुम लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो फील्ड नहीं थी एंड तुम लोग यू वर फाइंडिंग वेज टू कंटिन्यू प्लेइंग। एंड जितना परचम की कहानी में हम जब समझते हैं कि एट सम पॉइंट यू नो दैट देयर इज अ रिजर्व्ड फुटबॉल फील्ड, हम वी हैव द फातिमा बी सावित्रीबाई फुले फुटबॉल फील्ड, where is it at in terms of becoming an actual playground for parchams and other footballers, और किस तरीके से you see कि that is going to support initiatives for many girls like you? तो जो हमारा ग्राउंड है वो जब मैं जुड़ी थी परचम में, तो वो ग्राउंड तभी भी हालत में नहीं था कि हम वहाँ पे कोई जाके बच्चा खेल सके, क्योंकि वहाँ पे इतने जंगली घास थे, कचरा था, कीचड़ था, और बरसात की वजह से वो इतना गंदा होता था और इतना बदबू मारता था वो ग्राउंड। वो ग्राउंड इतना बड़ा है, 5 एकड़ की ज़मीन है और हमने रिजर्व किया है लड़कियों के लिए, पर वो ग्राउंड हमें 10 साल से रिजर्व्ड है और अभी तक मिला नहीं हमें हाथ में। और वो ग्राउंड पे फिर हम लोग उसको काटे कुटे, सब निकाले कचरा, उसको हमने लेवल अप, हमारे कॉर्पोरेटर से, एमएलए से बात करके उसको लेवल अप किए। बट स्टिल वो ग्राउंड कंडीशन में नहीं है कि एक पिच जो होता है, हम बात करते हैं कि एक फुटबॉल का जो पिच बनता है, वो पिच रेडी नहीं है वहाँ पे। बच्चे अभी भी वो ग्राउंड पे जिस तरीके की मिट्टी गिरनी चाहिए कि जिस वजह से बच्चे को हर्ट ना हो, लगे ना, वहाँ बड़े बड़े पत्थर अभी भी है उस ग्राउंड पे। तो मुझे लगता है कि वो 10 साल जो स्ट्रगल अभी हमारा चल रहा है, आई थिंक वो और शायद से 5 साल और 3 साल चलने वाला है, क्योंकि वो जब तक का ग्राउंड नहीं मिलेगा हम तब तक का। अभी जहाँ हम रिसेंटली प्रैक्टिस करते हैं वो एक बिल्डिंग का बैकयार्ड है। फिर उससे पहले हम जहाँ करते थे वो एक टूटा हुआ प्लेग्राउंड था, जहाँ पे झूले टूटे हुए हैं, ये टूटा हुआ है, और वहाँ पे, और फिर वहाँ पे लड़के, हर जगह लड़के होते ही है। पब्लिक स्पेस जब बोले थे हम, लड़के होते पर वो अपना आपकी स्पेस मान लेते ना कि पब्लिक स्पेस मतलब उनकी स्पेस। तो वो भी हमें एक तकलीफ होती है कि वो हमें स्पेस ही नहीं दे रहे उस जगह पे खेलने की। तो हम कैसे खुद को ज़बरदस्ती उस जगह पे हम इंक्लूड करते जान के कि नहीं, हमें भी आप थोड़ा टाइम आप शिफ्ट करो, आप हमें इतना टाइम दो, आप उतना टाइम लो। तो वो हमारा कॉन्स्टेंट स्ट्रगल चलता है। पर अगर मुझे लगता है कि वो ग्राउंड बन जाए हमारा वो वाला, तो वो इतने सारे पूरे मुमरा के, और वो ऐसा नहीं किसी परचम का ग्राउंड है, वो मुझे लगता है वो हमने रिजर्व कराया था मुमरा के औरतों और लड़कियों के लिए। कि जो स्टेडियम है हमारे उसके बाजू में, जो उस स्टेडियम में भी जब सुबह औरतें जॉगिंग को जाती है या वॉकिंग को जाते हैं, तो वो इतने अनकंफर्टेबल, क्योंकि हर जगह मर्द मर्द मर्द। तो उनको ऐसा होता है कि हमारा स्पेस भी कुछ होना चाहिए। तो वो उनका स्पेस था, पर वो रिजर्व्ड है, उस पे काम चलता है, कभी कभी बंद हो जाता है अचानक से। एंड देन वो हमारा कांस्टेंट टॉकिंग जब चलता है कोई भी एमएलए के साथ या कॉर्पोरेट के, सर प्लीज़ करो इसको, तब जाके वो कुछ ऊपर नीचे होता है, वरना फिर वो ऐसे ही बंद ही रहता है। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू गेट द प्लेस एंड देन गो एंड देयर एंड प्ले। तो बहुत हार्ड है हमारे लिए।
So Madina, you play with your college now. करेक्ट। तुम अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करती हो और तुम्हारा प्रैक्टिस, तुम्हारा ट्रेनिंग सब वहीं होता है। फातिमा, तुमने अभी एक तरीके से वो फुटबॉल जर्नी जो है वो उस उतने लेवल पर नहीं है बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन। तुम यू वांट टू फोकस ऑन स्टडीज एंड ऑल। जब जब यू सी कमिंग बैक टू फुटबॉल, अगर तुम चाहती हो कि तुम जैसे जब फुटबॉल वापस आओ, व्हाट इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो तुम करना चाहती हो? किस तरीके की ट्रेनिंग जर्नी है तुम्हारी एंड वेयर डू यू सी दैट ग्रोइंग? सो मैं जहाँ हाँ एक्चुअली मैं ना जहाँ पर अभी कोचिंग देने जाती हूँ तो मैं वहाँ पर देखती हूँ कि वहाँ पे उनके पास अच्छे कोचेस हैं, अच्छे ग्राउंड्स है, स्पेस है, और मैं देखती हूँ वहाँ पे लोग मतलब कि एकदम अच्छे से वेल प्लान्ड होके आते हैं कोचेस कि हाँ हमारे बच्चों पे जैसे काम करना है वैसे काम। मैं सोचती हूँ कि हमें भी ऐसी ट्रेनिंग मिले, लाइक कि हाँ आज मतलब कि एकदम टूर्नामेंट जैसा उनको एकदम ट्रेन कर देते हैं, कहीं मैच खेलने के लिए एकदम वो परफेक्ट रहते हैं, और हम ऐसे कि अगर कल टूर्नामेंट है तो हम आज पूरी प्रैक्टिस करते हैं और आज ही पूरी प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है हमें। तो मतलब मुझे चाहिए कि हम स्टार्टिंग से हमें पता चले कि हाँ अगर हम खेल रहे हैं तो हमारी ये पोजीशन पे हमें कैसे काम करना है, और हमारे सारे टेक्निकल्स पे हम सब चाहते हैं कि हमें इस बारे में पता चले और अच्छे से हमें कोचिंग मिले। लाइक मैं ये चाहती हूँ, जब मैं बाहर कोचिंग देने जाती हूँ तो मैं बहुत इम्प्रेस हो जाती हूँ कि वाह ये मुमरा में क्यों नहीं होता है, मुमरा के कोचेस क्यों नहीं हो रहे हैं ऐसे। तो मुझे चाहिए कि यार हमें भी ऐसे कुछ ट्रेनिंग मिले। मैंने जब सबा से बात करी थी तो यू नो शी टोल्ड मी कि स्टार्टिंग में जो मेल कोचेस थे वो आना नहीं चाहते थे मुम्बरा, यू नो, कोचिंग करने के लिए, देने के लिए। लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा बदलाव आया। अभी क्या सिचुएशन है जब हम कोचेस, परचम के लिए अगर कोचेस को बुलाएं तो किस तरीके के कोचेस आर रेडी टू कम, और किस तरीके कोचेस तुम लोग चाहते हो कि आए मुम्बरा में? तो जब स्टार्टिंग में जब हमने फुटबॉल स्टार्ट किया था तो जो कोचेस थे वो रेडी नहीं थे, और मुंबरा में फुटबॉल था ही नहीं, लड़कियों को तो और भी नहीं था। तो वो बोलते थे कि लड़कियां नहीं खेलती है। मतलब उनको लगता था कि जो फुटबॉल है वो पूरा मेल डोमिनेट गेम है और वो लड़कियों का है ही नहीं, तो लड़कियां कैसे आएगी और क्या खेलेगी। तो जो मेल कोचेस आते थे वो इतना आते थे और हमें फिर गधा, ये गधे से भाग रही है, मतलब वो ना इतना गलत बातें करते थे हमसे कि जो बच्चा एनकरेज होना चाहिए वो डिस्करेज हो जाता था। तो इसकी वजह से हमने सोचा कि नहीं, ये बिहेवियर उनका, और उनको आदत ही नहीं है लड़कियों को भागते हुए देखने की, लड़कियां खेल रही है वो देखने की। तो मुझे लगता है उनका भी वो नहीं है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है कभी खेलते हुए लड़कियों को भी, तो इसके लिए शायद से उनका बिहेवियर ही वैसा है। बट अभी जब देखते तो हम वो बोल, फिर अब वो जो कोचेस है, ये आपने पूछा मुझे, उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि अब लोग बुलाते हैं कि नहीं आप हमारे यहाँ पे आके ट्रेनिंग दो, अब आप आओ हमारे यहाँ। तो मुझे लगता है कि हम तो किसी और को बुलाने से बेटर है कि लोग हमें बुलाने लग गए कि नहीं नहीं मदीना तुम आओ, नहीं फातिमा आप आओ। हमें कॉल्स आते कि नहीं यार ये वो खाली है क्लब, ये क्लब में आप आके कोचिंग दोगे क्या? हम बोलते कि नहीं अभी सर यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले जो था हम बुलाते थे मेल कोचेस को कि हमारी लड़कियों को ट्रेनिंग दो, बट अभी हम क्योंकि हम 2-3 हम लोग बन चुके हैं डी लाइसेंस कोचेस, तो अब ये, और हम लोग मुमरा के पहले लाइसेंस कोचेस है, तो हमें लोग, और हमारा ऐसे बैनर कुछ लगा था एक जगह पे, हमने सेलिब्रेशन किया था, तो वो लोगों को पता चल गया, तो हम लोग को मुमरा के जो कोचेस हैं वो हम लोग को मैसेज किए कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो सब फॉलो करने लग गए। फॉलो करने लग गए हमें इंस्टाग्राम पे। तो हम लोगों को ऐसे हुआ कि हम लोग थोड़ा मतलब उनको लगा कि लड़कियां बन गई है कोचेस। तो फिर उन्होंने अपनी टीम स्टार्ट की गर्ल्स की, पहले उनके पास भी गर्ल्स टीम नहीं होती थी, फिर उन्होंने अपनी गर्ल्स टीम चालू किया और उन्होंने बोला कि आप लोग आके हमारे यहाँ गर्ल्स को ट्रेनिंग दो। पर हम बोले कि सर हमें ही खुद अभी और भी बढ़ना है आगे, और हमारे ही खुद के जो चीज़ें हैं, लड़कियाँ हमारी लड़कियाँ उनको हमें ट्रेन करना है। तो पर हम ऐसे सोचते नहीं है कि, और जो भी हम जिस कोच को भी हम हायर करेंगे हम चाहेंगे कि वो फीमेल ही हो, क्योंकि मेल के साथ हम नहीं लेना चाहेंगे पंगा। नहीं बट एक नहीं, दिन जरूर लेंगे, उनका माइंडसेट चेंज करेंगे। मतलब हम चाहेंगे कि वो लेके इस तरीके से हाँ हम लड़कियों को रखें तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जिस तरीके से लड़के हैंडल करते हैं लड़कियों को वो अलग होता है। क्योंकि हमने सुना है, हमें किसी ने बोला गधे से क्यों भाग रही है, हाँ सीधा चल, तो भागना नहीं आता, ये नहीं करना आता। भाई मुझे तो लगता है पहला पहला सेशन है मेरा, मुझे थोड़ा तो खुद को एक्सप्लोर करने दो। मैं अगर कोई मुझे बोले कि मैं ग्राउंड पे पहला दिन गई हूँ और मुझे अचानक से कोई बोले तुम गधे से भाग रहे हो,
तो मुझे कितना बुरा लगेगा, मेरा पहला दिन है, मैं खुद को एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मैं कैसा भाग रही हूँ, मैं कैसे उस गेम को परसीव कर रही हूँ, और तुम मुझे बोलते हो गधे से भाग रही हो। तो वो कितना बुरा इम्पैक्ट है ना। तो मैं बोलूँगी कि दूसरा बच्चे का एक्सपीरियंस ऐसा ना, हमसे बेटर है कि गर्ल्स को हम हायर करें, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम हैं, मुझे लगता है, तो फिर इसके लिए दूसरे फीमेल कोचेस, बट वी डोंट थिंक ऑफ हायरिंग एनीवन एट दिस पॉइंट, ओके, बाहर से। तो इज इट हाउ इट इज कि तुम लोग जो सीनियर फुटबॉलर्स हैं दे कोच यंग फुटबॉलर्स, ऐसा भी होता है? लाइक परचम इज यस, दैट वन? ऐसे ही ओके, होता है। हाँ, ऐसा होता है। okay, okay. I'm also wondering about Madina, you were saying कि how जो मेल कोचेस हैं एंड जब पहले दिन पे लाइक एक तरीके से तुम खुद अपने आप को ही समझना चाह रहे हो कि भाई हाउ डू यू रन, किस तरीके से यू आर चेजिंग द बॉल और सब कुछ, fighting that fight and then fighting the fight at home. I know maybe Madina that is not your experience, but Fatima, like तुम्हारा experience has been कि फुटबॉल की फाइट तो अलग है कि भाई फुटबॉल सीखना है और उसको समझ के अच्छे से खेलना है, दूसरी चीज है कि घर पे समझाना है लोगों को कि भाई फुटबॉल क्यों खेलना है, तो वो एक अलग तरीके की लड़ाई होती है। तो हाँ, कौन सी लड़ाई हैव यू बीन फाइटिंग, कौन सी लड़ाई चल रही है और कौन सी लड़ाई अब नहीं चल रही है? वैसे तो मेरी दोनों लड़ाई पूरी ज़िंदगी की तक चलेगी। लाइक मेरे पेरेंट्स ना मेरे घर वाले कभी एग्री नहीं होने वाले। रिसेंटली एक केस हुआ, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे भाई को ना जब पता चला डी लाइसेंस का, तो उसने मेरा डी लाइसेंस फाड़ दिया और उसने मेरा खेलना एंड ऑल बंद कर दिया। और उसको लगता था कि मतलब हम परचम में बॉयज़ है और मैं लड़कों से दोस्ती करती हूँ और मैं बहुत सारे लड़कों के साथ घूमती हूँ। मतलब भाई के दोस्त मुमरा में जो भी रहते हैं, अगर मैं बाहर खेलने जाती हूँ तो वो देख लेते हैं, तो भाई को वो गलत मैसेज पहुँचाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं लड़कों के साथ फुटबॉल लेके जा रही हूँ तो वो बोलेंगे हाँ कॉफ़ी में बैठी है, कॉफ़ी पी रही है उसके साथ, लाइक ऐसा मैसेज जाते हैं वहाँ तक। तो फिर भाई मुझसे सवाल नहीं करेगा, मतलब घर पर आ, और घर पर आऊँगी फिर मेरा फ़ोन लेगा, फिर मुझे मारेगा ऐसा। तो उसने क्या किया, उसने मेरा फ़ोन लिया, मदीना को बुलाया, मेरे कोच को बुलाया और उसने ना सबको मतलब मेरे को चिल्लाया और फिर मदीना को बोला, आज मदीना कुलसुम दीदी को बोला कि आज से ये नहीं आएगी। और मैं बहुत रो रही, बहुत रो रही। मैं बोली मेरे मतलब कुछ है नहीं ऐसा किसी के साथ, सब लड़के हैं। बोला कि लड़कों को निकाल परचम से। तो ऐसा था। फिर क्या हुआ, हाँ, फिर उसके बाद कुछ ऐसे मंथ चले गए, 3-4 महीने ऐसे हो गए। फिर मैं खेली नहीं, मैं घर से बाहर ही नहीं निकली, मैं घर में ही थी। मेरे पास फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था। और फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं एक काम करती हूँ, अगर मेरे भाई को लगता है कि अगर मेरा किसी के साथ अफेयर है या फुटबॉल के लिए मुझे जाने नहीं दे रहा है या लड़कों से प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेरी ब्यूटी हटा देती हूँ। सो मैंने सोची ओके ये काम है ना, तू कर, ये ले मेरा सर बाल काट दे, ट्रिम कर दे। तो वो इतना हैप्पी हो गया, क्या ओके, तो उसने मेरा बाल ट्रिम कर दिया, मेरा बाल पूरा उड़ा दिया उसने। सो हाँ, तो मैं मेरे पास बाल नहीं था, मेरे पास अभी छोटे छोटे बाल है। फिर उसको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मेरी बहन इसने इतना बड़ा कदम लिया है तो कुछ रीज़न होगा। सो मेरे को फिर उसके बाद मुझे ना ऐसे डाउट होता था क्या ये मुझे जाने देगा बाहर? मुझे डर लगता था फिर भी कि मेरा बाहर तो मैंने कर दिया, कट कर दी, बट ये मुझे बाहर जाने देगा क्या? तो फिर उसके बाद मैं एक बार है ना कुलसुम दीदी के साथ बाहर निकली कि यार मैं कहीं और थोड़ा जॉब करके देखूँ। मतलब अगर मैं परचम में जॉब करूँगी तो परचम में मेरी वज़ह से कुछ परचम को मतलब फेस ना करना पड़े। लाइक मेरा भाई तो पुलिस को कंप्लेन करके परचम पे केस कर दे, ऐसा होता था। तो मुझे ऐसा डर लगती है मेरी वजह से परचम में कुछ हो, परचम का कुछ ना हो। तो फिर मैं सोचती ओके अब मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ, एक बार जॉब करके देखती हूँ कि क्या होता है। तो मैं 1 मंथ मैंने किधर और जॉब किया, तो मैंने देखा कि ओके मेरा भाई चिल है, बट वो पूछता रहता था कि हाँ कहाँ है फातिमा, क्या मम्मी से पूछा था कहाँ है फातिमा, कहाँ है फातिमा। मम्मी बोलते थे हाँ गई है, कुलसुम के घर पे गई है, इसके घर पे गई है। तो बोलते थे बाहर मत भेजो उसको, बाहर मत भेजो, ऐसा था वो। फिर एक दिन हमारा वो आया, मंथ आया रमज़ान का। सो रमज़ान में मेरा भाई ना घर पे जल्दी आ जाता था इफ्तारी करने 7-6 बजे, और मैं ऑफिस से 7-7:30 बजे आती थी, 8 बजे तक आती थी। तो मुझे ना डर लगता था कि मेरे से पहले अगर भाई पहुंच गया तो मुझे उसको फेस करना पड़ जाएगा, उसके सवालों को जवाब देना पड़ेगा, और मैं नहीं कर सकती उसको फेस, क्योंकि वो उसके सामने ना मैं बहुत बहुत घबराती हूँ। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ना बचपन से उसको मेरा डैडी बना के रखे हैं कि अगर मैं मम्मी से बात करूंगी तो बीच में मेरे भाई को लाएंगे, बोलेंगे बोलो इसको, इससे बात कर, ऐसे बात कर, इससे परमिशन ले, तो लाइक ऐसा। मतलब
मेरी मम्मी डैडी ने पूरा हक उसको दे रखे है कि ये है तेरे मम्मी डैडी। सो या तो मेरे को ना मैं जॉब जाती थी तो मेरी मम्मी को ना चिल्लाता था कि तुम क्यों भेजते हो इसको, हाँ कहाँ जॉब कर रही है, तो मेरी मम्मी बोली परचम में नहीं कर रही है। तो मेरे भाई को परचम में एक्चुअली प्रॉब्लम था कि परचम में बॉयज है, तो मेरे को बोला कि मैं परचम में नहीं कर रही, परचम में मेरी मम्मी बोल देते हैं। पर मुझसे कभी सवाल नहीं किया, आज तक नहीं किया। वैसे मैं खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ उससे जवाब देने उसको। फिर मैं ऑफिस से ना ऑफिस की छुट्टी लेके हाफ डे से आती थी कि मैं जल्दी पहुंच जाऊँ इफ्तारी में दस्तरखान पे उससे पहले पहुंच जाऊँ, बट नहीं हो पाता था। और फिर मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी और उसका वेट करती थी कि कब घर से बाहर निकलेगी, कब मैं अंदर जाऊंगी। अब मेरी अजान हो जाती थी, इफ्तारी हो जाती थी, मैं फिफ्थ फ्लोर पे खड़ी रहती थी, ओके दरवाजा अब खुलेगा, अभी ये जाएगा, और वो जाता था फिफ्थ, मतलब वो ऊपर जाता था, मैं नीचे से ऊपर आती थी। ऐसा होता था। फिर मैं घर में आती थी और मेरे को समझता था कि हाँ भाई चला गया, तब ठीक है, अब घर में जाना सेफ है मेरा। सो या ऐसा होता था। तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हारा मैच देखा है? मेरे भाई ने मेरा नहीं, कभी नहीं देखा है। बिकॉज दैट मेक्स मी थिंक कि हम परचम की कहानी में जो सबा से बात करने के बाद एंड अदरवाइज एज वेल जितनी भी मैंने रिसर्च करी एंड समझा, कई कहानियां हैं जिसमें जब फैमिली मेम्बर्स एक्चुअली आके देखते हैं मैचेस तो उनका नज़रिया बदल जाता है, या एक तरीके से वो समझ जाते हैं कि क्यों फुटबॉल क्या, मे बी वो फुटबॉल कभी नहीं खुद नहीं सीखेंगे, लेकिन वो रिलेशनशिप जो प्लेयर्स और गेम के बीच में है उसको थोड़ा और अप्रिसिएशन देने लगते हैं, या समझ लेते हैं कि दिस इज़ एक पार्ट ऑफ लाइफ, चाहे उनकी बेटी है, बहन है। पूरे एक मैच हुआ था जो सबा ने भी हम मतलब बताया था अबाउट जो मदर्स हैं, द मदर्स ऑफ यंग फुटबॉलर्स, वो उनके बीच में मैच हुआ था क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे ओपन एरिया में कभी खेला नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस उनके लिए भी। Is that something which Fatima and I think Madina, both of you, like you want your families to come watch you? Like I think all of us want that. हम सब चाहते हैं कि there are things जो हम बहुत दिल से करते हैं वो हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, भाई बहन सब उसे नोटिस करें. Um, but do you think that's something that needs to happen, that might change the way your brother sees it? कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी फैमिली मुझे देखने आए, क्योंकि मेरी मम्मी और डैडी को पता है कि मैं ना सिर्फ चार दीवारी में खेलती हूँ, ऐसे बंद रूम में खेलती हूँ, मैं कभी खुले आसमान में नहीं खेली हूँ। मेरी मम्मी को पता है। और मैं हाफ स्लीव वाली मेरी ऐसी ऐसी मेरी जर्सी रहती है हाफ स्लीव, तो वो बोलते ये नहीं नहीं, इसको उतार, इसमें हाथ दिख रहे हैं, वो ऐसे हो जाते हैं। पर जैसे मैं बोलती नहीं नहीं, मैं ना इनर पहनती हूँ, अंदर मेरा फुल बंद रहता है। तो बोलते कि फुल आस्तीन की ना वो बनाने का ना जर्सी। मैं बोली ओके ओके, मैं बोलती हूँ। तो मैं मेरे डैडी को नहीं पता कि मैं टर्फ पर खेलती हूँ, ग्राउंड पर खेलती हूँ, उनको लगता है मैं एक रूम में खेलती हूँ जो बंद रूम है। तो मम्मी को भी नहीं पता कि मैं बाहर खेलती हूँ आसमानों के नीचे। और मेरे भाई को तो मैं कभी नहीं बुलाऊंगी कि अगर उसने मुझे देख लिया भागते हुए तो बोलेगा ये वो घर में बंद कर, इसको अभी घर में बंद कर, नहीं इसको नहीं खेलना है, लाइक ऐसा हो जाएगा मेरा भाई का। मतलब मुझे लगता है कि मेरा भाई ना, अगर मम्मी कभी मुझे देख भी लिए खेलते हुए और अगर लोगों, तो मम्मी मुझे भेज दे, क्योंकि मेरी मम्मी ना समझती है मुझे और मेरे भाई मुझे नहीं समझते। मुझे लगता है कि उसका ईगो हर्ट हो जाएगा कि उसने मुझे ऐसा देख लिया। मुझे नहीं लगता कि एक मेल का वो हो जाता है, मतलब कि मेरी बहन है, किसी और की बहन भागे तो उनको तो मजा आ जाता है, बट उनकी बहन भागे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा मुझे लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उनको बुलाऊंगी अपना मैच देखने के लिए। उनको लगेगा कि आज चार आदमी उनको देख रहे हैं, उनको चेयर कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं करेंगे ऐसा। तो मेरा पूरा उल्टा है फातिमा से। तो मेरे अम्मी मेरे अब्बा खुद बोलते हैं, और मेरे स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था। मेरे एरिया में लोगों को पता नहीं था कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ। पर मेरे जो हाफिज जी थे, तो मेरे जो मौलाना थे, अब वो मुझे मौलाना बोलते हैं मेरे भाई को कि मदीना का कोई मैच होगा तो दिखा मुझे, फ़ोन पे मैं देखूँगा मदीना को खेलते हुए। और मेरे अम्मी और मेरे अब्बा मतलब ऐसा है कि तू मुझे बुला ना, तेरा कोई मैच होता है तो हम आएँगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक का कि, या फिर वो टाइमिंग नहीं बैठता है कि मेरे अम्मी अब्बा आए और देख। और मेरे अब्बा एक्चुअली में रहते दूर है, तो मेरे अम्मी पर चाहते हैं कि मैं देखूँ तेरा मैच, तू कभी खेलेगी तो मुझे बता, मैं आती हूँ। और मेरे दोस्त लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि हाँ, नहीं तू कभी खेलेगी तो तू बुला ना, हम लोगों को आएँगे, तुझे चीयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो मेरा पूरा फातिमा से उल्टा केस है। आई वुड लव टू कॉल माय पेरेंट्स
and let them see my match. हमारा जब डी लाइसेंस का वो हुआ था, हमारा बड़ा सा पोस्टर लगा, हाँ, हमारे कॉर्पोरेटर आए थे हमें बुलाने के लिए, facilitate. फैसिलिटेट करने के लिए। तो इसने अपने घर वालों को बुलाई और मैं तो कि कोई नहीं आया मेरे घर से, मैंने किसी को बुलाया नहीं क्योंकि हमारे साथ एक लड़का भी था जो डी लाइसेंस किया था यार। तो मुझे ये लड़का मेरे बाजू में बैठा रहेगा, हमारे साथ डी लाइसेंस किया, मेरी मम्मी क्या सोचेंगे कि ये भी गया था। सो आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं बुलाना चाहिए, फिर गलत हो जाएगा और मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरे को बहुत सोचना पड़ता है, अगर 3 लड़कियाँ हैं तो मैं बुला सकती हूँ, लाइक अगर लड़कियाँ ही लड़कियाँ आ जाएँगी तो मैं बुला, हाँ, मम्मी सिर्फ़ लड़कियाँ हैं। अगर मैं कहीं जॉब पर भी जाती हूँ, मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ अभी, कोचिंग दे रही हूँ, तो वहाँ पे भी मैं मम्मी-डैडी पूछती हूँ, वहाँ पे लड़के कितने हैं? कितने लड़के हैं? कितने बड़े-बड़े लड़के हैं? मैं बोलती हूँ, नहीं है लड़के, सिर्फ़ लड़कियाँ हैं, सब लड़कियाँ हैं और मैं वहाँ पे सिर्फ़ एक लड़की हूँ। In terms of तुम लोगों का sort of ambition with football, मदीना तुम तो already हो space में जहाँ पे you're playing for your college. Do you see yourself playing for like bigger teams, and where do you see yourself with football in the next 5 years या कुछ? Yeah, so I would love to see myself, wearing Indian jersey someday. और मैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमारा बीच में बहुत ब्रेक हो गया था, तो वो प्रैक्टिस जब नहीं होती है रेगुलर, तो वो वापस से वो स्टेमिना, वो बिल्ड करना, और जो तुम्हारा हेल्थ होता है और जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाता है वापस से। तो अभी जब मैं अभी कॉलेज जुड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं वापस से कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है मैं जल्दी पिक चीज़ें कर लेती हूँ और मैं जल्दी चीज़ें पे वो पेस लेवल पे वापस से आ जाऊँगी। तो I see myself, playing for a good club in next 5 years. I think, the highest club in India, like Gokulam Kerala, के लिए मैं ज़रूर खेलना चाहूँगी. So if by this podcast, Gokulam Kerala wants to join, connect me please. I fervently तो wish मैं that खेल, happens. और मैंने अपनी अम्मी को ही बोली, अम्मी अगर मुझे कभी, और मम्मी को ऐसे सवाल पूछ रही थी, अम्मी अगर मुझे कभी केरला से ऑफर आया है कि उनके क्लब गोकुलम केरला से खेलने का ऑफर आया तो मैं जाऊँ? बोली कि हाँ, जिंदगी तुम्हें जहाँ ले जा रही है जाओ, करो, तुम्हारे नसीब में जो होगा। बोली हाँ मैं जाऊंगी। तो मतलब इट्स लाइक माय मॉम इज स्वीट, एंड कि वो समझती है कि हाँ ठीक है, नसीब में होता है तो वो तुम करते हो, तुम नसीब की बातें वो मानती है। Fatma, would love to see myself there. what is your, where do you see like my relationship with football? अभी नहीं, लेकिन से अगले 5 साल में, अगले 10 साल में. मैं हमेशा मदीना के साथ ही रहूँगी। जहाँ मदीना मैं वहाँ पर। Fantastic. Playing football. या एक्चुअल में ना मेरी मम्मी तो कभी मुझे कहीं दूर जाने नहीं देगी, क्योंकि रिसेंटली मेरे को पंजाब से एक आया था कि पंजाब में आओ तुम ट्रेनिंग देने के लिए, और वहाँ पर था कि मैंने बोली थी ओके मैं आ जाऊँगी, बट मैं कुछ मंथ के लिए आऊँगी, ओके लास्ट टू लास्ट 1 ईयर के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं पागल हो आप, 1 ईयर के लिए? आपको तो 3 ईयर यहाँ पे रहना है। मैं बोली नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बट मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ एक बार। तो मैं मम्मी से पूछी, मेरी मम्मी बोली पागल है तू जाएगी वहाँ पे 3 साल के लिए? तू पागल हो गई है? शादीशुदा हो जा फिर जाना तू। बोलती मम्मी मुझे जाने दो, मेरे को काम करना है, प्लीज जाने दो। Madina, your relationship with your brother is very different because you have a younger brother, right? एंड आई एम ग्लैड फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा भाई नहीं है। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि जो मेरी जो बड़ी दो सिस्टर्स है उन्होंने कभी मुझे ऐसा रोका टोका। And उन्होंने मुझे बल्कि बहुत सपोर्ट किया है कि क्योंकि ऐसा होता है ना कि यूजुअली लड़कियों को काम करना पड़ता है घर के और ये वो सब, पर मेरी बहन लोग क्योंकि जब मैं जाती हूँ खेलने या बाहर, तो सुबह से जाना पड़ता है और फिर सुबह होती है, शाम को आती हूँ मैं घर। ऐसा मेरा पूरा पूरा दिन कभी खेलने में गया है। तो अगर मैं कोई घर के काम भी नहीं करूँगी तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे चिल्लाएंगे कि नहीं तूने काम नहीं करी या ये वो। उन लोग खुद से मेरा काम अगर कुछ होता है तो वो कर लेते। तो मुझे लगता है मेरे बहुत सपोर्टिव फैमिली है पूरे हर तरीके से, अम्मी अब्बा मेरी सिस्टर्स। और मेरा भाई तो, बल्कि मेरा भाई जो है वो उसमें इंटरेस्ट है, क्रिकेट में उसको इंटरेस्ट है, तो मैं उसको सपोर्ट करती हूँ कि नहीं, कभी अम्मी अगर उस पर रेस्ट्रिक्ट कर दे तो मैं बोलती नहीं अम्मी इसको खेलने जाने दो या ऐसा वैसा। तो मैं और मेरा भाई जो है वो सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं। और जैसे कि फातिमा का है कि फातिमा का भाई उसको मना करता है, वैसे मैं उसको अलाउ करती हूँ। मैं उसके लिए उसका बड़ा भाई जैसे अगर बोला जाए तो मैं उसको अलाउ करती हूँ कि नहीं तू जा, तेरे को खेलना है कभी। तो मैं अम्मी से बोलती नहीं अम्मी उसको जाने दो, क्योंकि मैं वो इंटरेस्ट रखती हूँ और मैं वो चीज़ करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं खुद कर रही हूँ तो क्यों ना मेरा छोटा वाला भाई करना है तो उसको करने दो। तो वैसा होता है।
तो वेरी डिफरेंट केस, इसलिए आई जस्ट सजेस्टेड कि फातिमा शुड बी हियर विथ मी because we are living in a same place, we did our D licenses, but we just have very different lives. I'm just listening to both of you, मुझे यही समझ में आ रहा है कि फुटबॉल के ज़रिए आई थिंक तुम लोग कई और तरीके से अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फैमिलीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड आई रियली होप दैट योर फैमिली फातिमा अंडरस्टैंड्स दैट football is not just a game, it's a way of life, and it teaches so much. I'm, as I said, I'm not a footballer, लेकिन I know sportsmanship से कितना तरीके से confidence, ability to understand life, physical and mental fitness, सब कुछ होता है. I have a final question for both of you, which is how much change do you see, like the community in Mumbra, वो किस तरीके का चेंज उनके ज़हन में या उनकी सोच में आना चाहिए कि वो फुटबॉल और लड़कियों को ऐसे दो अलग दुनिया में ना देखें, जबकि ये देखें कि इट्स अ गेम और वो गेम कोई भी खेल सकता है. एंड व्हाट डू यू सी, लाइक तुम लोग मुम्बरा में रहे हो, यू हैव अ कम्युनिटी देयर, तो हाउ डू यू सी दैट चेंजिंग? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब परचम शुरू हुआ था 2012 में, तो लड़कियां नहीं खेलती थी, लड़कियां बाहर ही नहीं जाती थी और लड़कियां हिजाब में रहती थी. बट वो जो 2012 में हमारा फर्स्ट टीम था, उसने आई थिंक बहुत बड़ा चेंज और इम्पैक्ट लाया हमारी कम्युनिटी में, और हर जगह से बातें होने लगी कि लड़कियां खेल रही है. तो तब स्टार्टिंग में लड़कियां बाहर निकलने से डरती थी, और तब कोई फुटबॉल टीम नहीं, लड़कियों की कोई फुटबॉल टीम नहीं थी, लड़कों कोई कोचेस, कोई किसी को कोच नहीं करना चाहता. बट 10 साल में मुझे यहाँ पे अभी 4 साल हो जाएंगे परचम में, मैं जब लास्ट 4 ईयर से देख रही हूँ, तो अब लड़कियां खुद आके बोलती दीदी हमें फुटबॉल खेलना है, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो खुद अलाउ कर रहे हैं कि हाँ मेरी बेटी को खेलना है. बट जो स्ट्रगल्स रहे वो कहीं ना कहीं सेम रहा है, कि अभी जैसे कि स्टार्टिंग में भी लड़कियां झूठ बोल के आई हमारे पास बहुत सारी कि अब मैं यहाँ जा रही हूँ, और अभी जो है वो लड़कियां, जो पेरेंट्स है वो झूठ नहीं बोलते अपने पेरेंट्स से, बट पेरेंट्स लोग बोलते हैं तू काम कर ले फिर तू चली जा. वो भी स्ट्रगल रहा है पहले लड़कियों का, वो सारा काम करने के बाद भी झूठ बोलते थे. बट अभी थोड़ा ऐसा है कि एटलीस्ट वो सच बोल के अपना काम करके वो आ रही है. तो मुझे लगता है कि कुछ सालों में शायद से वो पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ सकती है, कि क्योंकि मुझे लगता है कि अभी गेम का जो इम्पैक्ट हमारे पूरे इंडिया में जो पड़ रहा है देख चल, क्योंकि हमारा अभी फुटबॉल जो वो बहुत ग्रो हो रहा है पूरे यहाँ पे, और अभी हमारे यहाँ पे वर्ल्ड कप रखा था, तो हम लोगों ने अपने सारे बच्चों को, पेरेंट्स को लेके गए थे दिखाने के लिए. तो वो एक उम्मीद है कि कभी ना कभी तो मुमरा में वो इम्पैक्ट दिखेगा, और वो लोग समझेंगे कि हाँ ठीक है मुसलमान लड़की है. क्योंकि वो ऐसा भी है ना कि पैदा होना है, बड़े होना है, खुद का देखना है, बच्चे शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, वो लाइफ जीना है, उनकी शादी करना है, वो वही कंटिन्यू फेज चलते जा रहा है ना उसमें भी. तो हमारा एस्पिरेशंस ही कोई नहीं है कभी, कभी हमने किसी को देखा ही नहीं हमने हमारा. और अगर हम बात करें कोई फुटबॉलर की भी, तो हमें ये नहीं पता कि मुसलमान में कौन फुटबॉलर है. तो हम लोग जब पहला हमारा एक मैच था, मुझे याद है कि हम लोग मैच था और हम लोग को एक मुस्लिम गोलकीपर मिली थी, अफशान आशिक, शी इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर. तो हम सब उसको देख के इतने इंस्पायर हुए कि हम सब मुस्लिम और वो भी मुस्लिम. तो हम लोग देख के अरे वो जम्मू कश्मीर से बॉम्बे आ गई और वो भाग के आए, वो करी उसने सब अपना. तो हम लोग उससे ऐसा कि हम तो यहीं रहते हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा कन्विंस करना अपने पेरेंट्स को, ऐसा ऐसा करना है. तो वो क्यों नहीं, कैसे नहीं, वो कैसे कर सकते हैं या फिर कैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं. और मुझे लगता है बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है 10 सालों में, कि पेरेंट्स को देखने की आदत हुई है, खुद अलाउ करते हैं बच्चों को, और जाने भी देते हैं कि हाँ ठीक है थोड़ा जाओ खेलो. पर अभी शायद से लगता है कि जो जो उनके दिमाग में डर है, या उनके दिमाग में जो सोच है कि घर वाले क्या बोलेंगे, वो जो 4 लोग होते हैं वो 4 लोग क्या बोलेंगे, वो शायद से उनको खुद को भी जाने को टाइम लगेगा, और वो उनकी गलती भी नहीं है. वो देखते-देखते समझते उनके साथ रह के, बच्चों के साथ बच्चों को क्या चाहिए वो समझते, मुझे लगता है वो हो जाएगा. बट चेंज हुआ है और उसके लिए मैं खुश हूँ कि वो चीज़ें बदली है मुब्रा में काफ़ी हद तक. तो और भी शायद से बदल जाए. उम्मीद है कि एक बार पेरेंट्स, बस बच्चा आया और जैसे मेरा हुआ है कि हाँ तू जा, तो वैसा हर पेरेंट बोले, और कोई, और जैसे मेरे मेरे घर वाले सपोर्टिव है मुझे लेके, वैसे सब बच्चों के पेरेंट्स सपोर्ट करे उन्हें. फातिमा? हाँ, मेरा तो सबसे पहले तो मेरे घर में जो चेंजेस मैं आपको बता देती हूँ, लाइक कि मुझे खेलने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, बट मुझे ऐसा है कि मुझे मेरे घर वाले, अगर मैं फुटबॉल ली हूँ तो ऐसा लगे चलो ठीक है, कोचिंग देने जा रही होगी, कि उनको मेरी कोचिंग से प्रॉब्लम नहीं है, उनको मेरे खेलने से प्रॉब्लम है, मेरे भागने से प्रॉब्लम है, ऐसा है उनको.
और मतलब अब मैं जब से अर्न करने लग गई हूँ फुटबॉल से, तो उनको फुटबॉल से प्रॉब्लम ही नहीं रही अब क्योंकि मेरे घर में मैं अर्न करती हूँ सिर्फ, मेरे बड़े भाई लोग कुछ नहीं करते हैं। सो या हाँ, तो उनको ऐसे कि अभी फातिमा अर्न करके देती है, तो मेरे मेरे घर मम्मी डैडी भी मेरे भाई को कुछ बोलते नहीं अब कि हाँ मतलब घर में तो यही है सिर्फ कमाती है। तो मेरे अगर कुछ भी मेरे घर पे अगर कुछ बात करनी रही, कुछ बड़ा कुछ ऐसा जो भाई हैंडल करता था, बट वो चीज़ मैं हैंडल करने लगी, कुछ घर के सामान, कुछ पेपर कुछ भी प्रॉपर्टी और कुछ भी रहता तो लाइक हाँ फातिमा 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 ऐसा होता है कि अच्छा फातिमा ओके सुनो, उसको पेमेंट करना है, उसको करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इधर जाना है, उसको लेके आना है, मतलब ऐसा हो जाता है कि हम जो भी भाई का काम रहता है, जो भी लड़कों वाला काम रहता है वो मैं करती हूँ। लाइक इतना चेंजेस मेरे घर में आ गया है। सो अब मुझे लगता है कि हाँ, जैसे कि मदीना ने बोले कि हम लोग ने यहाँ पे मुमरा के सारे जो भी हमारे स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स को हम लेके गए थे वो वर्ल्ड कप दिखाने के लिए। तो और वहाँ पे हम जब पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप भी करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, तो लाइक पेरेंट्स का जो बॉन्ड रहता है ना बच्चियों के साथ, तो वो बहुत खुल के आता है। लाइक वो मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरी मम्मी को भी मैं कभी कहीं पर्सनल स्पेस पे लेके गई होती परचम के थ्रू और उनसे बैठ के अपनी चीज़ें दिल से शेयर की होती, तो शायद ये वाला स्पेस मेरी ज़िंदगी में कभी आता ही नहीं। ये वाला पार्ट मेरी ज़िंदगी में कभी आता ही नहीं भाई वाला। जैसे परचम मम्मियों के साथ वर्कशॉप करता है और अपनी उनकी डॉटर्स के साथ बिठा के बात करता है, तो वो अपनी दिल की सारी बातें शेयर करती है। मम्मियाँ भी एकदम जज़्बाती हो जाती है, बच्चियाँ भी जज़्बाती हो जाती है, रोने लग जाती है। तो वो अपने सपनों के बारे में बताते हैं मम्मियाँ जो वो नहीं कर पाए, तो वो बोलती है कि मम्मी आप मुझे वैसा मत करो, लाइक आप सोचो कि मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझे करना था। तो मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाती है। फिर यहाँ पे एक वो आ जाता है कि ओके मम्मी समझ रही है बट डैडी नहीं समझ रहे, पर वो तो काम मम्मियों का रहता है, मना लेती हैं, कैसे भी कर लेती हैं। इतना चेंजेस तो मुमरा में आ गया कि हाँ अभी लड़कियां अगर खेलने निकलती है तो खुद मम्मी भी छोड़ने आती है उनको, लाइक ऐसा हो गया है। ये नहीं कि नहीं जाना है नहीं जाना है, बट इतने सपोर्टिव हो गए कि वो आते खुद छोड़ने, देखते खड़े होके अच्छा अच्छा ये कर रही है वो कर रही है, लाइक ऐसा हो गया। तुम दोनों की बातें सुन के अब वाकई में लग रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली जब से परचम की शुरुआत हुई और अब तक। एंड आई थिंक डोमेस्टिकली भी फातिमा तुम्हारी पूरी कहानी सुन के आ रहे हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू हैव बीन एबल टू शेयर इट एंड एक तरीके से गिवन अ पर्सपेक्टिव ऑन बोथ साइड्स। वो जो नज़रिया है वो एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा एक नज़रिया है जो जिससे सामने आता है कि हम अगेन इवन विद इन दैट कॉन्सेप्ट कि हम लड़कियां हैं, मुसलमान हैं, फुटबॉल खेलना चाहती हैं, तब भी सबकी कहानियाँ कितनी अलग हैं। एक दूसरे से हम क्या सीख सकते हैं और शायद एक दूसरे को क्या हम इंस्पायर कर सकते हैं। मैं तुम दोनों से बात करके बहुत ज़्यादा इस वक्त इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ। ऑनेस्टली I just feel like I want to come and hug both of you and just spend more time with you. मुझे भी Inshallah we'll do that at some point. बहुत बहुत शुक्रिया Fatima and Madina for your time. I am so happy कि हम लोग का conversation हुआ and I'm truly touched by the journeys that you both have shared with me and I wish you all the best. Thank you, Mariam. Thank you. This had a very nice time with you. If you enjoyed listening to this episode, please give us 5 stars on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts. To learn more about the co-founder of Parcham Sabah Khan, please do check out our last episode. Also, do listen to MBM's other conversations with Annie Zaidi, Samira Khan, Nazni Rizvi, among others, who bring a diverse understanding of being an Indian, a Muslim, and everything in between. I'm Mariam Haider. Thank you for listening to Maybe Muslim. I'll be back in a few weeks with a new guest. Until then, take care. Lots of love and gratitude.